अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल पाकिस्तान में बिजनेस आइडियाज़ बहुत चल रहे हैं विद द शार्क टैंक पाकिस्तान कमिंग अप विद सच एन एक्सीलेंट क्वालिटी। द बिजनेस ideas and business understanding is increasing, which is really good. बट लेकिन होता ये है अक्सर कि हम बहुत एक्साइटमेंट में हम अपना बिजनेस प्लान बना तो लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस प्लान सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। हालांकि हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग, वी जस्ट लव द आइडिया। बट व्हेन वी गेट इनटू मार्केट थिंग्स ऑफन फेल बिकॉज हमने उस पर पूरे तरीके से काम नहीं किया होता। Like, of course, now हर कोई जाके MBA तो नहीं कर सकता to understand the business on its own, but then there are smaller short courses and smaller projects and entrepreneur skills that we can learn. So one of the tool that is called Business Model Canvas, which help us to develop an effective business plan. वो बनाना इतना it's not difficult, it's not इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको understand करना essentially helps you understand your business on idea on its own. So today with us we have Dr. Javaria, who will help us to learn what a business model is, and it's going to be a very interesting session. She is going to teach us how to make a business model canvas for our idea with giving us some examples, for example, from Surf Excel. So let's begin. I am Dr. Javeria Shakil, Head of Sustainability and Climate Change. And my PhD is actually in Sustainable Business Model, which have been drafted keeping in view that lots of mistakes while lots of ventures they do because they are usually not able to map out completely their business model. And when you are not mapping out your business model, each component of it, what happens is that you mostly you lose it out somewhere. Okay, there are kind of, you can say, the loose end at every operations that is being you should look for and have to identify each and every strategy for that specific operations. So today we are going to just have a little recap of what is a business model and what can be done in order to improve it. थोड़ा सा मुझे वर्कशॉप का ये है कि आई वुड लाइक यू टू हैव अ आइडिया कि बिजनेस मॉडल के वैल्यू एडिशन डिसिप्लिन्स क्या हो सकती हैं and how those value addition disciplines can help you to create that value which is being demanded by everything. देखिए, let me give you example in that way that everyone is selling, let's suppose, achar. What value you can add into it through that business model which you might have mapped out in every operations. Oh, value, if you're not tracking it out, being a CEO or being the venturist or being the entrepreneur, you would never be able to capture the whole out of it, and you will never be able to identify that where the gap is existed, where you have those loose ends. So usually whenever we are starting with it, ideally the ideal thing is कि आपको आपके mind में होना चाहिए कि what opportunity that you are looking for. Lots of new ideas fail, lots of existing ideas fail, and lots of the whole running business are usually not fail. Why is that so? Because at the very start of venturing the new idea, you would never get to know that how to create the value in it while running a business. For example, your existing business is very good at it, like आप बड़ा जबरदस्त आपका business चल रहा है, everyone is appreciating it, you are running a lot, and then eventually you fail. To be very honest, let me give you a stats on that. अगर हम इसको देखें, which was a very turning point while I created my thesis for that. Lots of business, around 58% of large companies. I'm not talking about the small and the medium. I'm not talking about the small ventures. I'm talking about the large, under the 500 fortunate companies. They don't exist anymore since 1980s. Just imagine. 30 years का भी lifespan नहीं है उनका. And they were the largest one. Once they were the largest ones. So it means that there is somewhere, there is something which they have missed. Nokia might have missed it. Motorola might have missed it.
there were others brands, Nissan might have missed it. अब आप brands के नाम लें जो आपके old brands होंगे, they might have missed it somewhere. Why is that so? उसकी भी कुछ reasons हैं. There might be a reasons for their failure. Such as अगर आप just take out the Nokia, तो Nokia की क्या value addition कम थी market में. The one they were trying to do it in the market, वो किसी को less थी. Brand name was less था. ऐसा नहीं है. They were once a 500 fortune company. They don't exist. इसका मतलब है कि इवेंचुअली यू आर गोना फॉल डाउन. आपका नया आइडिया हिट स्पॉट पे चला गया, यू विल रीच टू योर मैक्सिमम ग्रोथ एंड देन देयर हैज टू बी अ डाउनफॉल. इसका मतलब यह है कि नॉट ओनली द बिजनेस मॉडल कंपोनेंट इज वैलिड फॉर द न्यू venturist, new entrepreneurs, new ideas, but also for those who might be on their introduction phase, who might be on their growth stage, who might be on their maturing stage. So at every stage of it, you have to map it out clearly and to see, okay, what we are doing. Let's just recap of, और हम बहुत बड़ी कंपनी बन गए हैं, लेकिन what is next? How we are gonna capture the whole market? मैं अगर आपको to be very honest, let me give you Pakistan's example. Rexona was the best or as best as the Lux was once, but the once is gone. So you need to understand it कि अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ वेंचर आइडियाज जो हैं वो आपको दे कैन किक यू ऑफ, यू कैन मूव ऑनवर्ड, you can make it successful, you can launch it successfully by having the right strategy and the right value addition which is required for it. यानी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी उसमें कैसे ऐड कर रहे हैं, उसको आपने कैप्चर कैसे कर लिया हुआ है. एंड वंस यू कैप्चर इट, हाउ, देखिए लार्जेस्ट कंपनीज आर द वंस हु एक्चुअली कैप्चर द वैल्यू, बट वंस दे हैव कैप्चर्ड दे आर नॉट गोइंग टू हैव इट फॉर टू लॉन्ग. Eventually they have to have something into their business models which are going to kick them off towards the next stage. ये कहानी है थोड़ी सी पुरानी सी, बट है ऐसी कि once there was a time the Maggi in Pakistan was one of the largest one, but today they are not anymore. They are not from a small conglomerate company, yet they couldn't able to, वो नहीं कर सके थे. उसकी रीजन बहुत सारी ये थी. सॉरी मैं बिल्कुल भूल गई. लाला, यू हैव आस्क्ड मी स्पेसिफिकली फॉर उर्दू स्पीकिंग, तो मुझे थोड़ा सा मैं मिक्स मोड के ऊपर. अच्छा, वो क्यों नहीं कर सके, उसकी क्या रीजन थी? उसकी बहुत बड़ी रीजन जो थी वो ये थी कि they couldn't see the market well, number one. Number two, they couldn't see what value should be added at the right time. ठीक है, what is the demand of the consumer and how they are doing it. ये सब चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए टाइम टू टाइम बिजनेस मॉडल को मैप आउट करना इज वेरी नेसेसरी एंड दैट हेल्प्स यू टू गेट टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इट. अच्छा, ये कुछ है. मैं थोड़ा सा लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन एंड देन इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज. आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप थोड़ा सा बातें हम साथ साथ करते रहेंगे. क्वेश्चंस आंसर सेशन जो है वो हम मेरे पास 3 सेशंस हैं. आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू कैन सी द प्रेजेंटेशन. ओके, मैंने जो है इस पूरे वर्कशॉप को ना एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिजनेस मॉडल कैनवस which we are going to leverage to multiple examples. मैं डिफरेंट किस्म के आपको मल्टीपल आइडियाज दिखाऊंगी. वो मल्टीपल आइडियाज किस तरह मैप आउट हुए हैं ऑन द बिजनेस मॉडल कैनवस, सो दैट यू अंडरस्टैंड. अच्छा ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट. And then eventually I'm giving you example of 2. One is Prema and another one is the Surf Excel, that how they are doing it. ठीक है, थोड़ा सा आपको आपकी आइडिएशन के लिए, so you understand it better कि अच्छा इस तरह हम भी कर सकते हैं. अच्छा, ये हो गया. फिर देन आपके लिए आपको मैं दिखाऊंगी. देखिए, दिस डजंट मैटर. आप बिजनेस मॉडल को आपने कर लिया, यू हैव मेड इट आउट. आज जब आप थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे, यू माइट बी गेटिंग इनटू दैट डायरेक्शन. आपको एक छोटा सा वेंचर होगा, वो बिजनेस आप चलाना चाह रहे हैं, वो आप कैसे चला सकते हैं. बट इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हो सकता है यू माइट नीड इन्वेस्टमेंट इनटू इट. तो वो आपने एक इन्वेस्टर डेक हम उसको कहते हैं. हाउ यू गोना शो दैट इन्वेस्टर डेक. वो इन्वेस्टर डेक आप किस तरह दिखा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को जो आपके अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें. आप उसको आइडिया दिखाएंगे, हाउ बिग इज द आइडिया. सब कुछ फर्जी है, जाहिर सी बात है. अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी उसके ऊपर
और वो आइडिया भी बड़ा यूनिक सा है, आपको लगेगा डिफरेंट सा आइडिया आपने हमें दिया है। फिर एक मैं आपको दूंगी केस स्टडी। वो केस स्टडी आप पढ़ेंगे, वो भी यूनिक सा आइडिया है, क्योंकि यूनिक आइडिया का सबसे ज्यादा ये नुकसान होता है कि उसमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हाउ टू कैपिटलाइज ऑन है। और यूजली जो मैंने देखा है, आने वाले जो ये जेंजीज टाइप हैं, व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन द न्यू आइडियाज, जस्ट थिंक नॉट ऑन द अपॉर्चुनिटी साइड बट ऑन वर्किंग ऑन मोर ऑन द न्यू आइडियाज। लेकिन आने वाला जो अगला बैच जो हमारे पास आएगा ना, वो होगा जो विल बी वर्किंग मोर ऑन व्हाट अपॉर्चुनिटी डज इट ब्रिंग है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस भी क्यों ना हो। तो हम इसको 3 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड देन इवेंचुअली विल मूव ऑनवर्ड। सो व्हाट इज पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपके बिजनेस मॉडल कैनवस आपका होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है और इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जो आपको विजुअली ये बता सकता है, अनलेस एंड यू आर वेरी गुड एट इट, ठीक है। बीएमसी स्पेशलिस्ट नाउ, यानी आई हैव वर्क विद मल्टीपल ब्रांड्स, और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स पर काम करने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, while I'm mapping out my own business, I don't need to visually develop it, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आइडिया हो रही होती है कि अच्छा दिस कम्स विद द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बट स्टिल मल्टीपल टाइम्स आई डू नीड टू राइट इट डाउन just to give myself a direction। तो ये याद रखें, it's a kind of a direction which gives you a starting point, जो आप डिस्क्राइब कर सके और एनालाइज कर सके आपके बिजनेस को भी। लेकिन उसके साथ कुछ सर्टेन केपीआईज भी आप अटैच कर सकते हैं। और यूजुअली इसके 9 की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। फर्स्ट इज द कस्टमर सेगमेंट, दूसरा है वैल्यू प्रपोजिशन, चैनल्स, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनरशिप, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। ये 9 इसके कंपोनेंट्स है दैट एक्चुअली मेक्स अप द बिजनेस मॉडल। अब इनको अगर आपने मैप आउट कर लिया, who's going to be your customer, what value you are going to give, what channel you are going to utilize, what is your customer relationships, वो आप किस तरह मैनेज कर रहे होंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स किधर किधर होंगे, आर यू फोकसिंग ओनली जस्ट वन रेवेन्यू स्ट्रीम और यू आर वर्किंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे आप 3-4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड कर रहे हो, की रिसोर्सेज क्या है, की एक्टिविटीज क्या है, की पार्टनरशिप्स क्या है, इफ यू वांट टू डू फॉर इट, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आपके क्या है। सो आप एक सिंगल कैनवस में जब इसको कर लेते हैं तो बिजनेस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपने व्हाट वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड, डिलीवर्ड और कैप्चर। यूजुअली स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, इनोवेशन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादातर तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपका वहीं पर होता है। बट मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए हर बिजनेस का एक मेच्योरिटी स्टेज आता है, उस मेच्योरिटी स्टेज के बाद एक नेक्स्ट स्टेज भी होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ विच एक्चुअली गिव यू कि आपका फोकस क्या है, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। आप अपनी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी स्केलेबिलिटी को भी। Yes, a comprehensive tool for strategic clarity and operational excellence। अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल जो आपको एक विजुअल प्रोवाइड कर रहा है फॉर डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल्स। 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और इसका पर्पस क्या है, इट एक्चुअली आइडेंटिफाइज एंड कम्युनिकेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। जो हमने 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं वो इट इज कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग। सो व्हेनेवर दैट यू आर पिचिंग, अगर आप इन्वेस्टर डेक के लिए भी पिच कर रहे हैं ना, वो भी आपके लिए आसान होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, आपको एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट बताता है, गैप्स आइडेंटिफाई आपको यहीं से ही होंगे, क्या क्या चीजें आपने अपने माइंड में नहीं रखी हुई। सो इट गिव्स यू अ कंप्लीट होल पैकेज, अच्छा ये चीज हो गई है एंड दिस इज मिसिंग। और ये भी कि हाउ ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कितना रेलेवेंट है, वो मुझे किस तरह बूस्ट दे सकता है। अगर मैं 2 रेवेन्यू स्ट्रीम रखूं तो मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स किस तरह ऊपर नीचे होंगे, अगर वो ऊपर नीचे होंगे तो उसका मतलब मेरी वैल्यू प्रपोजिशन भी तो एनहांस होगी। देन आई हैव टू वर्क मोर फॉर द पार्टनरशिप्स, मुझे और भी तो ये सब चीजें इसके अंदर है। मैंने आपको बता दिया कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ये सब 9 कंपोनेंट्स आगे की पार्टनरशिप, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सारे आते जाएंगे अभी, तो इनकी रेपिटेशन जो है वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। ओवरऑल आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए और एक्सप्लेनिंग हाउ द वैल्यू इज बीइंग डिलीवर्ड। मैं आपको अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि बहुत सारे बिजनेसेस क्यों सक्सेसफुल हैं, only those businesses are successful who have a clear strategic roadmap। और वो strategic roadmap आपके लिए इसलिए होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि व्हाट इज value principles which can help us to create a complete business model. ये इसको हम वैल्यू डिसाइपल्स भी कहते हैं, वैल्यू प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और तीन तरह के वैल्यू प्रिंसिपल्स होते हैं. वन इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, अनदर वन इज द वैल्यू क्रिएशन, और थर्ड वन इज द वैल्यू डिलीवरी. पोर्टर who is the father of the marketing, वो यूजली इसको तीन तरह में इस तरह में डिवाइड करता है: वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी, एंड देन वैल्यू कैप्चर. तो आप कहीं पे देखेंगे ये स्टेप्स कुछ और है, कुछ देख देखेंगे, लेकिन मोर और लेस द थ्री ऑफ द स्टेप्स आर लाइक दिस. ये पिलर है आपकी स्ट्रेटजी का. अब वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब, इसका मतलब ये कि आपने तीन तरह से सोचना है. मैं अब आपको ये बता रही हूँ वैल्यू का ये मतलब है, तीन तरह से सोचना है, और वो आपने मुख्तलिफ सोचना है. वो अगर आप मुख्तलिफ सोच सकेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू हिट द स्पॉट. वो हिट स्पॉट करना बड़ा जरूरी है. पहला क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन. यूनिक वैल्यू दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर. इट आंसर्स द क्वेश्चन क्या कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की जो आप हल करेंगे. अब ये एक छोटी सी प्रॉब्लम का हल है कि आपको घर बैठे सब्जी मिल जाए. ये एक प्रॉब्लम का हल है कि कस्टमर को प्रेस्टिजियस किस्म के, अगर एप्पल है तो एप्पल व्हाट वैल्यू दे आर प्रपोजिंग, they are proposing a brand itself, that wherever you will go you will be recognized for it. यही वैल्यू आपको वो दे रही है. ठीक है, जहां ममता वहां डालडा, आपको डालडा किस तरह की वैल्यू प्रपोजिशन ऑफर कर रहा है. सो यू एड्रेस द नीड्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर्स. वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, देन यू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशंस फॉर दैट. वो सॉल्यूशन अगर आप उनको केटर कर लेंगे ना, लेट्स सपोज एक बंदा कीटो डाइट के ऊपर है और आप उसको कीटो का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसकी नीड को इन्हांस कर देंगे. देखिए, मार्केटियर्स नीड्स, देयर इज अ डिबेट ऑन इट, ये डिबेट भी है इसके ऊपर कि मार्केटियर्स जो है वो नीड नहीं बनाते. ओके, वी एग्री विद दैट. वो नीड बनाते नहीं है, लेकिन एक्चुअली नीड वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको सिर्फ केटर किया जाता है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा हमेशा से ये रहा है कि नहीं, यू हैव टू क्रिएट अ नीड. आपने उसको बताना है कि ये तुम्हारी जरूरत है. ये प्रोडक्ट शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है. जैसे अभी आप देखें, टेम्परेचर जैसे ही आपका फॉल करता है और आप मिक्स तरह के मौसम में चले जाते हैं, तो उस वक्त आपको मॉस्किटोज का डर, डेंगू का डर ये बढ़ना शुरू आता है. उसी वक्त एडवर्टाइजमेंट हिट स्पॉट जब भी आपको करती है तो आपको लगता है ओह यस, दिस प्रॉब्लम इज कमिंग अप, देयर इज अ नीड फॉर इट. वो नीड आइडेंटिफाई जो है वो आपका वैल्यू प्रपोजिशन के थ्रू ही हो सकता है. इसके आगे हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे नीड को क्रिएट किया जा सकता है. अब आप नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी, या खाली वैल्यू क्रिएशन. ये क्या होता है? ये आपके प्रोसेसेस होती हैं, आपके रिसोर्सेज होते हैं जो कंपनी यूटिलाइज करती है इन ऑर्डर टू जनरेट. पहले आपने सोच लिया आपने क्या वैल्यू देनी है, फिर आपने अपनी प्रोसेसेस और रिसोर्सेज, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप केटर कर रहे हैं नीड को, लेकिन अगर उसको कहीं पे भी डिससेटिस्फैक्शन होगी, दे आर नॉट गोना कम फॉर यू. लेट्स सपोज उसको पे बैक करना है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट ठीक नहीं आया, एयरलिफ्ट आया पाकिस्तान में, एयरलिफ्ट ने मार्केट बना ली जो फूड पांडा इतने सालों से नहीं बना सका था. ठीक है, उनका भी पांडा मार्ट था, लेकिन दे कुडंट एबल टू सक्सीड इट. लेकिन एयरलिफ्ट आया एंड एयरलिफ्ट डिड दैट जॉब विद इन मंथ्स. व्हाई? क्योंकि उनका वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग था. कैसे उनका वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग था? दे वर फोकसिंग मोर ऑन, आई मस्ट से, कस्टमर ने कॉल की, रिटर्न्स राइट एंड देन. उन्होंने कस्टमर को ब्लेम नहीं करना, उसको अननेसेसरी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं करना. डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, दैट शुड बी डन. इफ इट इज लेट, द पेनल्टी वुड बी ऑन द राइडर. अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं दैट कैन बी क्रिएटेड विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम. अगर वो आप हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लें तो यू विल बी एबल टू गिव देम दिस. एंड देन द थर्ड वन इज द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस. अब इसमें मेथड्स में क्या होता है, आपने किस तरह वो वैल्यू डिलीवर करनी है. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है, यानी दो जगह पे अवेलेबल है, नहीं ऑनलाइन के लिए फिजिकल स्टोर भी अवेलेबल है, नहीं आपके किराने पे भी अवेलेबल है, नहीं डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी अवेलेबल है.
ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरह की है, नीड बेस्ड है, इमोशनल बेस्ड है, किस तरह की मार्केटिंग नीड्स को आप कैटर कर रहे हैं, और कस्टमर की सर्विसेज की प्रैक्टिसेस क्या हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, दैट फॉल्स इनटू इट। तो आई होप दैट इज क्लियर। ये अगर वैल्यू प्रिंसिपल्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा एक बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब ये मैंने आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है, तो अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बिजनेस मॉडल कैनवस को अगर हमने ड्रॉ करना होता है तो हम यूजली इसी तरह ही ड्रॉ करते हैं, आपने काफी जगह के ऊपर देखा भी होगा। उसको मुझे बहुत ज़्यादा ड्वेल इन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाऊंगी सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बताऊंगी क्योंकि इवेंचुअली आपने ये बनाना है। आप इसको अभी चैट जीपीटी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको ही करेंगे कि क्या की पार्टनर्स क्या होते हैं, ये वो आपको बता देगा, की एक्टिविटीज क्या होते हैं, लेकिन हाउ टू मैप इट आउट, दिस इज द स्किल, दिस इज द आर्ट। अब अगर आपके फॉर एग्जाम्पल की पार्टनर्स, तो हु आर सप्लायर्स एंड द पार्टनर्स, कहाँ से ले रहे हैं प्रोडक्ट और कहाँ पे दे रहे हैं प्रोडक्ट। आज ही मेरे पास एक somebody has approached me like 2 or 3 days ago, and they wanted me to do some research कि एक प्रोडक्ट है उनका which is अचार, they wanted to launch a premium अचार, ठीक है, और उसका उनको सप्लायर चाहिए। अब ये क्या है, आपका की पार्टनर। उन्होंने अपनी कॉस्टिंग की, उन्होंने कहा अगर हम घर में बनाते हैं, छोटा सा बिजनेस उन्होंने स्केल आउट करना है, अगर हम घर में बनाते हैं, खुद करते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो रादर देन मेकिंग योर ओन, व्हाई नॉट टू बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स। उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके मार्जिन्स क्या होंगे, दे वांटेड टू कैलकुलेट ऑन इट। उन्होंने कुछ कैलकुलेट भी किया और कुछ सप्लायर्स पे दे स्टार्टेड वर्क ऑन इट। हर तरह के प्रोडक्ट की हर तरह के की पार्टनर्स हैं। मैं आपको 3 तरह के एग्जांपल से समझाऊंगी। एक है जूस बार, फ्रेश फ्रूट जूस कियोस्क लगा रहे हैं आप। एक है कॉस्मेटिक ब्रांड, हेयर एंड स्किन केयर लाइन, वेरी एक्सक्लूसिव वन, खास किस्म के एक्सक्लूसिव हेयर के प्रोडक्ट्स आप ऐसे एज्यूम कर लें, और स्किन के भी। और थर्ड वन है आपके फ्रेश सॉसेस, लोकली मेड सॉसेस एंड चटनीज एक्सेट्रा। आप इसको अचार भी डाल सकते हैं और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक जूस बार है, तो उसके लिए आपके की पार्टनर्स कौन से हो सकते हैं, फ्रूट वेंडर्स, आपने डेली बेसिस के ऊपर फ्रूट्स लेकर आने हैं ना, कहीं से तो लाएंगे। मतलब क्या आप डेली बेसिस के ऊपर सब्जी मंडी जाएंगे, या आप एक सप्लायर रख लेंगे, उसको एक्स्ट्रा वही जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो पे करके हैसल फ्री होकर अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हुए वो चीज़ दे देंगे। तो क्या, और आप इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि और क्या डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं। सेकंड चीज़, अगर आपका कॉस्मेटिक हो तो उसके लिए आपके की पार्टनर्स कौन से हो सकते हैं, माइट बी सलोन्स, माइट बी पैकेजिंग सप्लायर्स, कुछ भी इस तरह के, और कोई ऐसे सप्लायर्स जो दोज हु आर ऑलरेडी मेकिंग दोज कॉस्मेटिक्स। और द थर्ड वन है दैट माइट बी द फ्रेश सॉसेस, वो आप फॉर्म से भी ले सकते हैं, कोई शेफ्स की बॉटल्स भी ले सकते हैं, कुछ बने बनाए सप्लायर्स भी हो सकते हैं आपके। ये तो हो गए आपके की पार्टनर्स। दूसरी चीज क्या है आपकी, दैट इज द की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो लेवरेज करेंगी आपके नेक्स्ट फेज को, यानी आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज वुड बी रिक्वायर्ड इनटू इट। जूस बार अगर बनाना है तो पहले तो जूस प्रिपरेशन होगी, हाइजीन होगी, सप्लाई मैनेजमेंट होगी, ये 3 चीजें पूरी होंगी आपकी तो आपका जूस अच्छा दिख जाएगा। अगर कॉस्मेटिक होगी तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पैकेजिंग और ब्रांडिंग, ये इसका पार्ट होगी। तीसरी चीज अगर फ्रेश सॉसेस तो सॉसेस की प्रिपरेशन और उनकी पैकेजिंग, ये आपकी की एक्टिविटीज है इससे रेलेवेंट। तीसरी चीज क्या है, की रिसोर्सेज। अब आपने अपनी की पार्टनर्स भी आपको पता चल गए, आपको की एक्टिविटीज भी पता चल गई। अब देखिए विजुअली आप क्लियर होते जाएंगे कि हाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप ये, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, कहाँ पे गैप है और कहाँ पे नहीं है। की रिसोर्सेज क्या है, की रिसोर्सेज आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपको एक जूसर रिक्वायर्ड होगा, आपको एक कियोस्क रिक्वायर्ड होगा, आपको एक स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। अगर कॉस्मेटिक है तो उसकी फॉर्मुलेटर्स यानी जो बैकएंड के ऊपर है, लैब इन्फ्लुएंसर्स, लैब हो गई या इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ये तीनों चीजें आपके लिए की रिसोर्सेज है। इन्फ्लुएंसर्स ही के थ्रू तो आजकल कॉस्मेटिक ब्रांड चलता है। जूस बार होगी तो आपको पता है कि उसका कियोस्क, उसका स्टाफ कितना मैटर करेगा। फ्रेश सॉसेज होंगी तो उसके लिए किचन जार्स, इस तरह की जो भी स्पाइसेस इज रिक्वायर्ड वो आपके लिए कितनी मैटर करेंगी, क्योंकि वही तो वैल्यू ऐड करेंगी।
आप एक फालतू किस्म का सप्लायर उठा लें और उसी सप्लायर को रीपैकेजिंग करके आगे बेचने की कोशिश करें, तो टेस्ट तो आप वो अचीव नहीं कर सकते। इसका मतलब है एक शेफ जो आपको ये बना के देगा, जिसकी ये स्पेशलिटी होगी, वो कितना मैटर करेगा आपके लिए, कहाँ पे वैल्यू ऐड की जा सकती है। ये नाउ यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो आपको फिर आइडिया होगा कि अच्छा हाँ, दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज व्हाट वी कैन नॉट। Fourth thing is value propositions. What value do we deliver to our customers? जूस बार की आपकी क्या वैल्यू हो सकती है? क्विक, हेल्दी, अफोर्डेबल जूस। अब आप इसमें कोई भी डाल दें, ग्रीन जूस डाल दें तो वो हेल्दी में चला जाएगा, वो विद इन मिनट डाल दें, टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो आपकी जूस बार में या जो आप अपना यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है। हो सकता है आप अगर हेल्दी दे रहे हैं तो आप कैलोरी फ्री दे रहे हो, ठीक है। और हो सकता है आप फ्लेवर्स वाइज दे रहे हो, आपकी स्पेशलिटी यही हो कि आप 15-20 फ्लेवर्स देते हो, चॉइसेस दे रहे हो। तो ये चीजें आपकी वैल्यू प्रपोजिशन विल बी कम्युनिकेटेड। Those customer who would be coming to you, they would not be coming on the basis of the key resources or the key activities. They would be coming on the basis of जो customer fall है, that would be totally dependent on the value that you are proposing. अच्छा, अब इस तरह कॉस्मेटिक है तो वो ऑर्गेनिक है, क्रूल्टी फ्री है, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, न्यू फार्मूलाज हैं, ये सब आपके कॉस्मेटिक्स का पार्ट है। क्वालिटी है, पिगमेंट्स मैटर करती हैं इसमें। इफ इट इज़ ऑयल ब्रांड तो ऑयल के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, किस तरह का है, किस तरह के एसेंशियल्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कोई भी ऐसा हर्ब वगैरह वो आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ये सब चीज़ें जो है वो ये ऑर्गेनिक बनाया हुआ है, तो वो चीज़ें आपकी कॉस्मेटिक के अंदर फॉल कर जाएंगी। थर्ड थिंग इज द फ्रेश सॉसेस, होममेड टेस्ट और नो प्रिजर्वेटिव्स। ये आपके फ्रेश सॉसेस का एक आइडिया या एक वैल्यू प्रोपोजिशन या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पैकेजिंग भी हो सकती है इसमें, फिर आप इसको ऑगमेंट करना है कि फ्रेश सॉसेस में अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल पैकेजिंग नंबर 1, आप इसको और ऑगमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, you can think of, for example, preserving it for 2 weeks. That is another one. Third one, giving them the whole chart. कि 1 teaspoon will weigh down how much, ठीक है, यानी उसमें कितनी कैलोरीज हो सकती हैं एक चम्मच में। ये बड़ा एक की होगा कि 1 टीस्पून में इतनी कैलोरीज है, 1 टेबल स्पून में इतनी कैलोरीज है। तो वो आपका जब प्रोडक्ट लेंगे तो उनको पता होगा कि अच्छा इसके साथ और भी वैल्यू एडिशन इज कमिंग है, सो दे विल हैव अ मोर ट्रस्ट ऑन यू एंड इवेंचुअली दे आर गोना बाय द प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसको अच्छा, अब जब हम पहले हम इसको पूरा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बट इफ्स भी तो हमने इसमें से देखते हैं ना। कस्टमर रिलेशनशिप्स, अब फ्रेंडली सर्विसेज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, काइंडली फॉर द जूस बार, कॉस्मेटिक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन might be for it, fresh sauces, recipe booklets, demos, newsletter, recipe books, ये इसी का ही पॉइंट है। 4-5 आप उसको रेसिपीज दी तो उसको पता नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट कितनी मल्टीपल यूजेज क्या है इसके, so that how you are going to maintain the relationship and after sales services can be the part of it, ये भी एडिशन हो सकती है। और भी कोई एडिशन आप इसमें करना चाहेंगे तो वो you can incorporate it eventually. Then you have the channels. How do we reach of our customer segments? कैसे, ठीक है, ऑन कैंपस कियोस्क क्या होगा, ऑनलाइन प्री ऑर्डर्स क्या होंगे, ई कॉमर्स क्या होगा, इंस्टाग्राम होगा, रिटेल स्टोर्स होंगे। ये चैनल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो चैनल्स आपको ये बताते हैं कि आपके अपना प्रोडक्ट प्लेस कहाँ कहाँ करने हैं। वो जो मार्केटिंग के 4 P's है उनमें से एक P होता है विच इज कॉल्ड प्लेसिंग। वो प्लेसिंग में आपको ये पता होना कि हमने बेचना किधर किधर है। अब अगला सवाल आपका ये है, ऑन कैंपस बेचेंगे, ऑनलाइन करेंगे, यहाँ से आप और भी सोच सकते हैं ऐसे वेबिनार, इन स्टोर करेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर करेंगे, एरिया वाइज सेग्रीगेशन करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे ओनली, फार्मर्स की मार्केट होगी या ऑनलाइन मार्केट होगी या लोकल स्टोर होगा, क्या होगा। ये चैनल्स आपने वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द चैनल्स यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज द कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट आपको ये बताता है कि आपने किसको टारगेट कर रहे हैं
अब ये इतना ज़रूरी है, आपको पता चल गया हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आपको लगा कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना चाहिए, लेकिन ये इतना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कस्टमर सेगमेंट से नहीं पता तो आप कभी भी उनके लिए राइट स्ट्रेटजी नहीं डिवाइस कर सकते। ये नहीं कहा कम्युनिकेट भी क्या करना है आपको ये नहीं पता चलता। कौन सा कस्टमर है? हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर है। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू प्रपोजिशन, यहाँ पे व्हाट इफ आता है, व्हाट इफ योर वैल्यू प्रपोजिशन इज हेल्दी, लेकिन आप कह रहे हैं यू आर गिविंग इट टू द स्टूडेंट्स, होल बिजनेस मॉडल इज फ्लॉप। What if you are giving organic, but you are giving it to the young adults, those young adults who are not concerned with the organic? So you are targeting to the wrong customer segments, or might be your value proposition is not right. In either way, दोनों तरीके से आपको ये बात सोचनी है कि हमने नेक्स्ट पे इसको इंटरलिंक हमने इसका कैसा करना है। लेट सपोज मैं आपको एक आपकी जूस बार की वैल्यू है, आप वैल्यू प्रपोजिशन में देखिए लिखा हुआ है क्विक, आपने लिख दिया क्विक, लेकिन आपके पास तो वो की प्रोसेसेस या की एक्टिविटीज में ये चीज आपने हाईलाइट ही नहीं की कि हम अगर हमने क्विक देना है तो उसका मतलब एट अ टाइम अगर हमें 3 ऑर्डर आते हैं तो हमारे पास तो एक ही जूसर है, हम उसके अंदर 3 ऑर्डर कितनी मिनट में बेच सकेंगे? 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट। अगर आप 15 मिनट में वो एक जूस बेचेंगे, इसका मतलब ये है कि जो आपने अपनी वैल्यू प्रपोजिशन रखी है तो आप कभी फुलफिल नहीं कर सकते। इसका मतलब अब देखिए, यहाँ से आप देखने से आपको बड़ा क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी कि ये बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है। ट्रिकी इसलिए है कि यानी जो आप बता रहे हैं उससे आप कितना हट रहे हैं, जो आप बता रहे हैं उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है बैकएंड के ऊपर, उस स्ट्रैटेजी को आप फॉरवर्ड वे में और बैकवर्ड वे में, दोनों वे में आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन इट कम्स टू द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। अब आपके आगे भाई कॉस्टिंग भी करनी, बहुत सारे आइडियाज फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग। रॉन्ग कॉस्टिंग लीड्स टुवर्ड्स द रॉन्ग आइडियाज। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है आपका? इंग्रेडिएंट्स, रेंट, लेबर काउंट कर लिया आपने। कॉस्मेटिक के लिए क्या हो सकता है? R&D, मार्केटिंग, पैकेजिंग। फ्रेश जूसेस के लिए क्या हो सकता है? इंग्रेडिएंट, स्टरलाइजेशन, जार्स, ये सब चीजें। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कितने ज्यादा अलाइन होंगे। दे विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द की रिसोर्सेज दैट यू आर पुटिंग इन, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू प्रपोजिशन, इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द चैनल्स विच यू आर सीकिंग फॉर। जिस तरफ भी आप जा रहे हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर हमारे पास आता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी पर कप, कॉम्बो डील्स, केटरिंग, कैसे क्या क्या तरीके काम हो सकते हैं। कॉस्मेटिक है तो प्रोडक्ट की सेल्स, गिफ्ट बॉक्सेस, सब्सक्रिप्शंस, ये भी कर सकते हैं आप। फ्रेश सॉस है तो पर जार सेल्स, बंडल पैक्स, कॉम्बोज, टाइल्स, ये भी हो सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना वो आपको हमेशा इट गिव्स यू एन एज ऑलवेज। यानी नेटफ्लिक्स से हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंक्रीज करें, या तो सब्सक्रिप्शन पर मॉडल, या फिर हम आगे उसको कैसे लेके जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर मॉडल नहीं, 5 फैमिली का पैकेज डील एटसेट्रा, इस तरह के पैकेज आपने काफ़ी ज़्यादा देखे और सुने होंगे। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये हम बाद में करते हैं इफ वी हैव दैट मच। अब ये देखिए आपके की पार्टनर्स क्या है, मैं आपको इसके एग्जांपल से पहले ही थोड़ा सा ये समझा दूं ताकि आप फिर देन यू कैन ट्रैक इट एग्जैक्टली। सिर्फ एक्सेल की अगर हम एग्जांपल उठा के देखें, दे आर इट इज जस्ट द वन ब्रांड, आइडियली तो वन वैल्यू, दैट इज डिटर्जेंट, लेकिन वो दे हैव डिवाइडेड देयर वैल्यू इनटू मल्टीपल थिंग्स सच एज 4 तरह के, तो उनके सिर्फ टॉप लोड है, एक मैटिक है, एक फ्रंट लोड है, ये सब अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, और लिक्विड भी है। तो इंडियन मार्केट का है, तो इंडियन मार्केट में तो उनका अब जो मुझे लगता है आइडिया, क्योंकि इंडियन मार्केट से ना यूजुअली फॉल्स, हमारे यहाँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो टिक्की वाला हिसाब इज बीइंग फिनिश्ड,
बट यूजली दैट इज द केस। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कस्टमर सेगमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अर्बन है, सेमी हाउस होल्ड है, मदर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, इको कॉन्शियस कंज्यूमर हैं, जो कम वो लेस वॉशिंग हो, लेस वाटर हो, इस तरह की चीजों के ऊपर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। Very proposition, superior stain removal with fabric, promotion of the child development, that is good. ठीक है, so you just give them that, वो उनको आप वो दें। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, रीफिल पाउचेस, ये भी तो उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। इस तरह की कुछ चीजें, ये पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आया, लेकिन ये भी इट इज गोइंग टू कम वेरी सून। आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट्स कि वो जो कुछ भी इंडिया में और हिंदुस्तान लेवल वहाँ पे कर रहा है, दे आर गोना ब्रिंग इट यहाँ पे। इसी तरह चैनल्स, चैनल्स क्या है आपके? ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अब तो ग्रोसर ऐप दराज और इनके ऊपर भी इनके प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह भी दे आर रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली। फिर देन आपके पास आता है कस्टमर रिलेशनशिप, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, कम्युनिटी इंगेजमेंट, फीडबैक बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स। ये भी फीडबैक बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स को आ रहा होता है ना कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, टॉप लोड के लिए क्या होगा, किसी ने सवाल किया हुआ है किसी जगह के ऊपर टॉप लोड के लिए क्या होगा, so you tell them टॉप लोड के ऊपर क्या होगा। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सेल्स ऑफ पाउडर्स, लिक्विड्स, बार्स, न्यू फॉर्मेट्स लाइक लिक्विड रिफिल पाउचेस, सीजनल प्रमोशंस, ये सब आपके रेवेन्यू की स्ट्रीम्स हैं। टॉप लोड, फ्रंट लोड अलहदा, ये सारे इसी का ही पार्ट है। देन यू हैव द की रिसोर्सेज। क्या की रिसोर्स है? ब्रांड इटसेल्फ इज द की रिसोर्स। रीफिल्स, पाउचेस आपका अच्छा आपका सॉरी कि एक जो सबसे अच्छी चीज है ना अबाउट यू कैन से यूनिलिवर इज देयर R&D। देयर R&D इज टू स्ट्रॉन्ग, जो कि यूजुअली नहीं होती है। इसी तरह आपके आगे रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको पता है नेस्ले का की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? इट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बिकॉज दे ओन दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उनका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है। यू विल फाइंड the Nestle products, their Nido, ब्लू बैंड और इस तरह के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको हर जगह मिलेंगे, एवरीवेयर। इसी तरह आपकी है की एक्टिविटीज, प्रोडक्ट इनोवेशंस, मार्केटिंग कैंपेन्स और आइदर सस्टेनेबिलिटी, आजकल बहुत ज्यादा इसका चल रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स एज वेल। की पार्टनरशिप्स, एड एजेंसीज, एनजीओज, रिटेल एंड ई कॉमर्स प्लेयर्स, ये सब इनकी क्या है? इनकी की पार्टनरशिप। दे हैव मेंटेन दैट रिलेशनशिप। हर एक के लिए एक नया एक अलग अलग बंदा असाइन है जो इन सबको देख रहा है और वो सेपरेटली उनके रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहा है। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग है, या सस्टेनेबल पैकेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, या इस तरह की जो चीजें वो हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। ये अगर आप देखेंगे तो की पार्टनर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, रॉ मटेरियल सप्लायर, ब्रांड रेपुटेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, की एक्टिविटीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप में एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, चैनल्स में रिटेल स्टोर, ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इफ दे आर ओवर देयर, हाउस होल्ड फैमिलीज, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट स्कूल्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी अलग है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इसी तरह यू हैव द कस्टमर सेगमेंट्स एज वेल। अब इनके भी कस्टमर सेगमेंट जो है वो मुख्य तरह की हैं और वो हर लेवल की है। एक वो है जो उनका क्लासिक क्विक वॉश यूज करते हैं, एक उनका इजी वॉश यूज करते हैं, एक उनका मैटिक, और एक उनका टॉप लोड और एक फ्रंट लोड। टॉप लोड और फ्रंट लोड की प्राइस ज्यादा रखी हुई है, सेम प्रोडक्ट नेम बट विद अ डिफरेंट पोजिशनिंग, और वो हर डिफरेंट पोजिशनिंग हर कस्टमर सेगमेंट के लिए मुख्तलिफ है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट इज टू अस। क्या है इनकी ज्यादातर अगर आप देखें की एक्टिविटीज मैंने आपको बिजनेस बताई है, वेरी पोजिशन, ठीक है, वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, दे वैल्यू, वही चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है इनका। चैनल्स भी अगर आप देखें, सुपर मार्केट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, रूरल आउटरीच जिनकी बहुत अच्छी है, स्मॉल पैकेजिंग दे हैव स्टार्टेड विद इट, वो 10 वाला पैक, इस तरह की चीजें के स्मॉल एसक्यूज में अगर आप करें स्टॉक कीपिंग यूनिट में, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं। अब इसी तरह प्रेमा का भी अगर आप देखेंगे तो प्रेमा का भी आप इजीली मैप आउट कर सकते हैं। प्रेमा का एडवर्टाइजिंग है, कस्टमर सर्विसेज है, लॉयल्टी प्रोग्राम से भी काम नहीं
किया, दे विल इवेंचुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, डेली है, उनकी अपनी लेवल प्रोडक्शन है, ब्रांड रेपुटेशन है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसके बगैर तो चल नहीं सकते ना। इसी तरह बाकी भी अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसको मैप आउट किया जा सकता है। और इनकी सबसे बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है अगर आप गौर से देखें, दैट इज द फ्रेशनेस एंड द टेस्ट और वाइड रेंज ऑफ डेयरी आइटम्स। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द चीज भी इन्होंने कर ली हुई है इंट्रोड्यूस, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड लबन, ठीक है, इस तरह के न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने, फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, इस तरह की चीजें जो है वो कर ली। सो इसका मतलब ये है कि एवरी बिजनेस हैज अ मॉडल। नंबर वन, it helps to actually not only structure it but also validate our idea, how useful the idea is going to be। ये पिचिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है, प्लानिंग के लिए भी और लॉन्चिंग के लिए भी, तीन तरह से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया, मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसके बाद, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक नए आइडिया को कैसे लॉन्च करना है। अब ये आइडिया क्या है, ये एक डिजाइनर डॉल्स अपैरल, ये आप लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है आपको, यू हैव टू सी द इन्वेस्टर्स। अब अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए तो आप इसको पिच आउट कैसे करेंगे? दे आर फ्यू स्टेप्स, लेकिन आप इसको अपने तरीके से मोल्ड आउट कर सकते हैं, अपने तरीके से देख सकते हैं, कॉस्टिंग वगैरह इस तरह के XYZ इस तरह की चीजें इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। अब ये लश लूम के लिए एक इन्वेस्टर पिच मैंने आपको ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि जब आप बिजनेस मॉडल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप इन द एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने अपना बिजनेस मॉडल कैनवस ड्राफ्ट किया ना, उसकी बेसिस के ऊपर ही आप एक अपना इन्वेस्टर पिच भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब लश लूम इज लॉन्चिंग पाकिस्तान's first premium doll apparel brand, blending cultural relevance with the sustainability. So they are targeting the urban families with a high quality, customizable and eco-friendly product lines. ठीक है, अब बिजनेस मॉडल लेवरेजेस टेक्सटाइल अपसाइक्लिंग, यानी अपसाइक्लिंग का मतलब रीसाइक्लिंग की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल कस्टमाइजेशन और D2C सेल्स चैनल्स की तरफ। यानी हम वो सारे प्रोडक्ट्स उठाएंगे जो साइक्लिंग के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, वहीं से उठाएंगे, उन्हीं को स्टिच करेंगे और डिजिटली कस्टमाइजेशन भी उसके करेंगे। ठीक है, अब यूजुअली क्या है, देयर लैक ऑफ कल्चरली रेलेवेंट डॉल क्लोथिंग इन द मार्केट, ये आपको भी पता है। मिनिमम इनोवेशन इन द डॉल एक्सेसरीज एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। और अगर आप इसको, मैंने तो सिर्फ ये एक बिल्कुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बिल्कुल जेनेरिक से दी है, लेकिन अगर आप ये साइकोग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ ट्रेंड इन, जिस तरह कस्टमाइजेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग अपनी बर्थडे को कस्टमाइज कर रहे हैं, यानी और इतने हाई लेवल के ऊपर दे आर स्पेंडिंग ऑन सच इवेंट्स। और इस तरह का ट्रेंड बढ़ गया है जिसके ऊपर आपकी स्पेंडिंग जो है वो पूरे डॉल हाउसेस और इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या टॉय मार्केट इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये है कि पीपल हैव द स्पेंडिंग पावर एज वेल, यानी उनके इनकम लेवल्स काफ़ी ज़्यादा राइज हो गए एंड दे वांट कस्टमाइजेशन, नॉट समथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। ओ सोल्यूशन क्या दे रही हैं हम जी? एक कस्टमाइज्ड डॉल आउटफिट थीम अराउंड पाकिस्तानी कल्चर एंड द फेस्टिवल्स, इको कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग अपसाइकल्ड टेक्सटाइल वेस्ट। एक बात याद रखिएगा कि हम इसके लिए खाली ये नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ पाकिस्तानी डिजाइन थीम ही देंगे, हम इसके लिए ये भी सोच सकते हैं कि इवेंचुअली वी आर गोना लॉन्च सम कॉस्ट्यूम्स जो कि सुपर गर्ल, जैसे सुपर मैन है, इसी तरह सुपर गर्ल या और कैरेक्टर्स हैं, टैंगल्ड हो गया, इस तरह के कैरेक्टर्स हो गए, वो भी आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और AI ड्रिवन कस्टमाइजेशन टूल एज वेल, आप व्हाट डू यू वांट प्लीज हाईलाइट इट। आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, यू जस्ट पुट इट इन एंड देन दे गिव द कमांड एंड देन दे एग्जैक्टली गिव यू व्हाटएवर इज बीइंग रिक्वायर्ड। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? 4 to 12 की जो गर्ल्स हैं और उनके पेरेंट्स। अर्बन तो हम एरियाज में टारगेट करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, माइट बी सियालकोट, जहाँ जहाँ थोड़ा सा लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अच्छा, अब ये एक्सपेंशन आप कर सकते हैं इन फ्यूचर, जहाँ पे अब सोपड़ा मार्केट्स इन GCC एंड UK एज वेल, जहाँ पे थोड़ा जेंडर का भी वो थोड़ा सा हो गया है एंड इवन द मेन आर ऑल्सो रिकग्नाइजिंग द डॉल्स एंड एवरीथिंग विद देमसेल्व्स एज वेल। ये आपकी नेक्स्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आपकी उसके साथ अलाइन करती है तो। देन ये मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था
कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है एक नई से नई। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आपकी वो इंटेग्रिटी और आपकी वैल्यू के साथ जाती है, अगर आप मुस्लिम हैं तो you will never go for it. If you are not Muslim, then definitely you have to find the other opportunities. I visited once in and I was very amazed at that time, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि this can happen to the children as well. I went to the US and मैंने वहाँ क्या देखा कि आपकी हर प्रोडक्ट के साथ इस तरह की जो आपकी जो जेंडर से रेलिवेंट है उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो उन्होंने मैच आउट कर दी है। एवरी प्रोडक्ट इज डूइंग इट, एवरी सिंगल प्रोडक्ट, एंड नॉट ओनली, देखिए हमें तो ये बात पता है, लेकिन बट ऑल्सो टू द किड्स प्रोडक्ट एज वेल। इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो डेवलप हो गई है। इसी तरह आपका बिजनेस मॉडल, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है आपके, ठीक है, डायरेक्ट है, ऑनलाइन है, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में रहना चाहती हैं। देन आपकी कस्टमाइजेशन क्या है, और चिल्ड्रन क्रिएट्स डिजाइन्स वाया द एआई टूल्स, यू प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म, यू आस्क देम, और सर्कुलर सप्लाई चेन है इसमें, यानी आपको सिर्फ ये बताना है उनको कि हमें जहां से हमें प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल किया हुआ है और रिसाइकल करके हमने ये प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया हुआ है। अब आई नो ये इट विल ब्रिंग अ लिटिल कॉस्ट हायर, लेकिन नॉट दैट हायर एज वेल। अगर आपने जीन्स का कोई ड्रेस बनाना है तो आप इस तरह की कंपनी के साथ पार्टनर कर देंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, यानी आपका जो रॉ मटेरियल है दैट कुड बी फ्री एज वेल। अगर आप उनको थोड़ी सी वहां मशीनरी और इस तरह की कोई चीज रखने का देंगे, वो कोई कंपनी से फायर हो गई होगी, आपके साथ शायद हो सकता है पार्टनर भी कर लें इस चीज के लिए। प्रोडक्ट लाइन, फेस्टिवल ड्रेसेस, ईद, बसंत, वेडिंग्स और इस तरह की कोई भी और चीज हो सकती है जो आपकी इसका पार्ट हो सकती है। मिनी यूनिफॉर्म, स्कूल, नर्सेज, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह एज वेल। कस्टमर ड्रेसेस किट्स आपके क्या हो सकते हैं, मिनी ज्यादातर यूनिफॉर्म्स आपको पता है वो भी चलते हैं। फिर इसी तरह जिसमें आपको क्रिएटिव थीम्स वगैरह के साथ कस्टम ड्रेसेस किट, डिजाइन योर ओन फैशन बंडल्स, दैट इज अनदर थिंग। अच्छा, और भी आपका ये भी हो सकता है कि आप इस तरह की मार्केट को भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोज नॉट हु आर लिविंग ओवर हियर, और बट उनके कल्चरल रूट्स जो हैं वो यहाँ के साथ हैं। फेज 1 हमारा ये होगा कि हम इंस्टाग्राम पे जाएं, दराज पे जाएं, शॉपिफाई और व्हाटएवर, हम वहाँ पे अपने एक सॉफ्ट लॉन्च कर लिया। फेज 2 क्या हो सकता है, स्कूल पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स भी हो सकते हैं। फिर फेज 3 क्या है, आपने एक्सपोर्ट पायलट्स किए या फिर कमर्शियलाइज मॉडल बनाया। अगर आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाल ली है जो आप बाय करना चाहते हैं विद योर ड्रेसेस एंड थीम्स एंड एवरीथिंग, देन गो। और अगर किसी फ्रेंचाइज के साथ करना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर इट। पूरी दुनिया में वैसा हो रहा है कि यूजली क्या करते हैं, कोई सेलिब्रिटीज को उठाते हैं और सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस जो उन्होंने पहने हुए होते हैं अच्छे फेमस जगहों के ऊपर, वही रेप्लिकेट करते हैं और फिर देन आइडेंटिफाई करते हैं द ब्रांड आइडेंटिटी विद दैट, कि हर सेलिब्रिटी का अपने ड्रेस को कैरी करने का स्टाइल और होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज, फर्स्ट मूवर, ठीक है, कल्चरल इको फ्रेंडली, डिजिटल एक्सपीरियंस वाया द डिजाइन प्लेटफॉर्म, इस तरह के आपको डिजाइन दे दिया। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपकी कितनी हो सकती है, ग्रॉस मार्जिन कितनी हो सकती है, मतलब ये इट इज गोइंग टू बी यू कैन से अबाउट। अब ये तो बहुत ज़्यादा मैंने प्रोजेक्शंस किए, लेकिन आप ये देखिए अगर इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, ये आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर बिजनेस मॉडल, उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे आप, कहाँ कहाँ क्या क्या लगाएंगे, ये सब चीज़ें अगर आपका मैप आउट होना बिजनेस मॉडल के अंदर, उसमें से ये चीज़ें निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फाउंडिंग टीम क्या होगी, यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी, तो वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लेनी हो तो हाउ easy it is to go with your you can say kind of invested deck, वो आपने करना है और then you will move on somewhere। लोगों के सवाल आए हुए हैं, ठीक है, at the beginner level where you can register your business idea or startup। पहले तो ये चीज़ बताएंगे why you want to register somewhere, ठीक है, आप क्यों करना चाह रहे हैं रजिस्टर। आपने अगर SCCP में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको अगर एक अपना आइडिया वगैरह यानी आपने अगर अपनी इक्विटी मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको यूजुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं।
अगर वो बिजनेस आपको थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर जाना चाहे, ठीक है, तो वो एससीसीपी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पब्लिक करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। एज अ प्राइवेट कंपनी आप होंगे, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो उसके बारे में बताएंगे, और देन यू विल रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। On what basis it is the shares are being divided? On definitely your choice, on your business partner who is going to be the investor, would be taking up, क्या आप उसको पूरा बिजनेस दे देंगे या उसको सिंगल ओन बिजनेस रखेंगे। यूजली दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू शेयर द बिजनेस विद एनीवन, लेकिन ये हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बट इफ बोथ पीपल डू नॉट मैच अप, तो आप यू एंडेड अप, तो एक बंदे के नाम के ऊपर बिजनेस हो, अगर आप स्टार्टअप में है, इवेंचुअली आप उसकी शेयर्स निकाल के डिवाइड कर दें, बेच दें। किसी एक इन्वेस्टर ने आप किया, आपने ओके आप इसका लेना चाहते हैं शेयर, तो आप इसका 20% 50% मेरे माँ बाप ले लें। A question here, at which stage BMC cost benefit analysis comes into play? Okay, it comes at while you are making your cost structures and also try to identify the revenue streams out of it. ठीक है, आपने मैप आउट कर लिया अपनी ऑल एक्टिविटीज, सो आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली फ्लो डाउन करेगी टुवर्ड्स द कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट यू आर गोना हैव। Okay, then you are going to focus on, okay, would that be beneficial or not? ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस तो ऑटोमेटिकली सामने आएगा ना आपके, बिल्कुल ऐसे क्लियर एंड कट, क्योंकि विजुअली आपने मैप आउट किया हुआ है। अच्छा 30% इतना दिया, 20% इतना दिया, 30% इतना दिया, 40% इसको दिया, इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा। सप्लायर्स ठीक नहीं है, सप्लायर की कॉस्ट इतनी है, जब आप कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे ना, उसमें सब एक एक की कॉस्ट डालते जाएंगे, नहीं यार इससे बेहतर है कि हम कहीं से बनी बनाई की चीज़ उठा ली जाए, इससे बेहतर है कि हम बने बनाए कुछ चीज़ कर लें। There are no more questions. Is that all? जी प्लीज, मैंने तो आपको केस ही दिया है, अगर आप इसको इफ यू कैन रीड इट एंड इफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस, तो आई एम हियर, तो हम इसको देखें। I think there won't be more questions. Yeah. Okay. All right. Thank you so much, Dr. Javeria, for doing this. And we have received good feedback. I'll be sharing feedback with you too. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.